Hello and welcome to Physics is Awesome. Today our chapter is Unit and Measurement. In this chapter, we will study physical quantities. So the topic of our video is physical quantity. As we know that our physical world or universe made of many things and we categorize into three things. First one is our matter, second one is our energy, and third one is space. So here is a matter, a material. Whenever we see around us, like trees, clouds, stars, anything, buildings, vehicles, they all got particles. So they are matter or material. Then energy, energy. For example, if you sitting on your garden, uh, then if light rays coming from sun fall on your cheek or strike on your cheek, you feel something, you feel some heat on your cheek. So that is the radiation or energy. Third one is a space. So there is a space where matter and energy present and they interact each other. So this nature of physical world, whatever you want to call it, universe made of energy, matter and space. And there are many phenomena take place in this physical world or universe or nature. For example, what these phenomena? For example, every day we see sunrise, then it set on the evening, and next morning what, it again rise. That is a physical phenomena. If you sitting on your garden or terrace, you can feel some heat on your body because of sun rays coming from the sun and fall on a strike on your body. So you can feel something, that something is heat. That is a physical phenomena. if you if you take a ball and you throw vertically upward direction, yeah, anywhere, any direction, after some time what will happen, that ball will fall on the surface of ground. So this is the physical phenomena. So in this physical world there are many physical phenomena take place, and what we just want to study them, we just want to compare them, we just want to measure them, how much measure them. So for a study, for studying them or comparing them, we have to give them names, we have to give them names. क्या करना होगा, उन फिजिकल फिनोमिना का या फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमको नाम देना होगा, so that we can refer each other. हम उससे क्या कर सकते हैं,
हम रिफर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हियर इज अ वुडन स्टिक। ये हमारा क्या है? वुडन स्टिक है। Here is our wooden stick. Here is our iron stick, iron rod, and here is our another wooden stick. So देखने से हमको लग रहा है कि ये तीनों में कुछ न कुछ difference है. We can see that there is a difference amongst these stick, whether it made of iron or wood or something. So this stick, let's say this is first one, first stick, number 2, number 3. These both, number 1 and number 3, are made of wood, and this one iron stick. So this stick is that much, and this stick is this much, and this stick is this much. So the difference amongst them is this much, this much. It is this much, it is this much, and it is this much. So difference among these stick is this much, this much, and this much. So you can see that it is small, it is large, and it is moderate. So what is the this much? This much is the characteristic of this thing. This much is the characteristic of this stick. This is the property of things. So let's call it length. We call it length. Length. So here the characteristic is length, जो एक स्ट्रिक को दूसरे स्टिक के साथ क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है. तो our first characteristic of this physical world is length. क्या होता है? चीजों का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज लेंथ. इज लेंथ. ओके. नाउ if I hold this wooden stick, it compress my hand. ये क्या करता है? थोड़ा सा मेरा हाथ को कंप्रेस करता है. ये इस वुडन स्टिक को भी मैंने यहाँ पे रखा हाथ पे, ये भी क्या करेगा हमको? ये हाथ को हमको कंप्रेस करता है. इसके बाद जब मैंने इस लेंथ को, इस स्टिक को रखा अपने हाथ में, ये ज़्यादा कंप्रेस करता है. इट कंप्रेस माई हैंड मोर. व्हाट इज दैट? ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक देखा लेंथ. लेंथ इसको क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है तीनों को अलग अलग. बट तीनों को जब हमने हाथ पे रखा, व्हेन वी पुट दिस स्टिक ऑन आवर हैंड, दे कंप्रेस. बट कंप्रेस कैसा करता है? कोई ज्यादा कर रहा है, क्या होगा? सम स्टिक कंप्रेस मोर, ज्यादा कंप्रेस कर रहा है, कोई कम कंप्रेस कर रहा है. तो ये भी एक क्या है? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मास. हमने देखा कि जिसके पास ज्यादा मास है, वो मेरे हाथ में क्या कर रहा है? कंप्रेस ज्यादा कर रहा है. तो हमने दो क्वांटिटी, दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, नेचर और यूनिवर्स का पता कर लिया. पहला क्या होगा? लेंथ.
सेकंड क्या होता है? मास। ठीक है। अब कोई आया हमको पूछ क्वेश्चन किया कि बताओ व्हाट इज द लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव सनराइजेस। ठीक है, दो सनराइजेस के बीच का लेंथ बताओ। हमारे दिमाग तो घूम गया, क्योंकि हम उसका लेंथ तो मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। फिर हमने सोचा कि कैन वी मेजर द मास बिटवीन टू सक्सेसिव सनराइजेस? आंसर इज नो। हम उसका मास भी मेजर नहीं कर सकते। बट हम हमें लगा कि कुछ तो यार मेरा क्या हो रहा है, बीत रहा है, पास कर रहा है, ड्यूरेशन है। ठीक है, और हमने कहा कि लेंथ सॉरी टाइम, हमारा जो पास हो रहा है वो क्या है? टाइम। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एक सनराइज के बाद दूसरे सनराइज जब होगा उसके बीच का टाइम हम मेजर कर सकते हैं, टाइम बता सकते हैं। ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, टाइम बता सकते हैं, लेंथ नहीं, मास नहीं। अब ये तीन प्रॉपर्टीज, तीन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हमको मिल गया यहाँ पे। क्या है ये? लेंथ, मास एंड टाइम। So what is it? It is the property of different things, a property of nature. And I have what I want to give them, I want to give them names. So I want to give name of this property, and that is, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा है, यहाँ पे ये इससे ज़्यादा है, यहाँ पे ये इससे छोटा कम है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? इस प्रॉपर्टी को हमने कहा लेंथ। अब जब इन्हीं को हमने हाथों पे रखा तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से प्रेस कर रहा है मेरे हाथ को, तो उस प्रॉपर्टी को हमने कहा क्या? मास। ठीक है, अब क्या है? अब हमको कह दिया कि दो सनराइज, सो वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ बिटवीन टू सनराइजेस। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे नहीं कर सकते, हम क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज टाइम, जो बीतता है वो क्या था? टाइम। नाउ so this characteristic known as quantity, physical quantity. So the name of here, the name of any characteristic or property of the nature is physical quantity. मतलब क्या है? इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का या किसी भी नेचर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ये सिर्फ नाम है किसका? कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक इन आवर नेचर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ जैसे कि इस लाइन का क्या है? फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। जब इसको हमने हाथ पे रखा, हम इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखा कि कोई प्रेस कर रहा है ज्यादा, कोई प्रेस कर रहा है कम। सो दैट particular characteristic and property is a physical quantity and we named it mass। वो mass है हमारा। ठीक है, अब हमको पूछा जाए द हाउ मच हाउ मच द फिजिकल क्वांटिटी इज, हमारा फिजिकल क्वांटिटी कितना है? सो हाउ मच, हियर हाउ मच। So this how much, the answer of the how much is that I'll have to measure the quantity, means
द मेजरमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कितना है फिजिकल क्वांटिटी, कितना है, इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना होगा। सो मेजरमेंट इज द quantitative description or expression of physical quantity. For example, for example, length 1 meter, 2 meter, 3 meter. All are lengths. Length. So length is our physical quantity. Length is our physical quantity, and this is the representation, a quantitative representation of physical quantity. ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटिव, क्वांटिटिव नंबर्स में एक्सप्रेशन है, नंबर्स में, दैट इज द मेजरमेंट। नाउ हमने इसी तरह क्या किया, हमने इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी पूरे यूनिवर्स की देखी, या फिर हमने नेचर में खोजा फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमको बहुत टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज मिली। ठीक है, हमने पहले क्या किया, लेंथ, एक क्वांटिटी मिला हमारा लेंथ, एक क्वांटिटी मिला हमारा मास, और एक क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी मिला हमको टाइम। ठीक है, और फिर क्या किए, हमने देखा कि हमारा जो नेचर है उसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, कैटेगराइज कर दिया फिजिकल क्वांटिटी को इन 2 कैटेगरीज। और फर्स्ट कैटेगरी इज फंडामेंटल, फंडामेंटल quantity, and second one is our derived quantity. So fundamental quantity, so the fundamental quantity here is the one which cannot be expressed in term of any other quantity, and derived quantity is the characteristic which can be expressed in term of many fundamental quantities. चलो इसको हम समझते हैं कैसे। हमने देखा कि अगर यहाँ पे इसका मेजरमेंट हमको लेना है, किसी लाइन का मेजरमेंट लेना है यहाँ पे, तो हम लेंथ के टर्म में हम इसको कर सकते हैं, फिजिकल टर्म, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, लेंथ के टर्म में। अब इसको क्या मास के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, तो नहीं। क्या टाइम के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, हम अगर लेंथ का यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसमें क्या है, लेंथ, एक प्रॉपर्टी है लेंथ। ठीक है, ठीक है, ये लाइन है, कोई हम ऑब्जेक्ट नहीं लिए, तो लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है,
इट हैज़ अ लेंथ। लाइन का क्या मास होगा? नहीं, लाइन का कोई मास नहीं होगा। हमने क्या ज्योमेट्रिकल लाइन ली हुई है, इसका कोई मास नहीं होगा। इट इज सपोज इट इज मासलेस, तो कोई मास नहीं होगा। टाइम नहीं, ठीक है। तो लेंथ कैसा होगा? यहाँ पे हमारा क्या होगा? लेंथ जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम मास के टर्म में या टाइम के टर्म में हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अगर सोचो आप यहाँ इतना ही लेंथ है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ इतना लेंथ है। अब कोई पर्सन है ए, इसको ये यहाँ से यहाँ इसको ट्रेवल करता है, उसको लगता है सम टाइम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए, लेट्स से T1। कोई पर्सन है बी, उसको लगता है T2 टाइम। और सपोज करो T1 ज़्यादा है T2 से, मतलब ए को इस लेंथ को पार करने में हम क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है। और बी को इसी लाइन को, इसी लेंथ को पार करने में हमारा टाइम कम लगता है। तो ये एक नया प्रॉपर्टी हो गया। ए कैसे लेट कर रहा है और बी कितना यहाँ पे क्या कर रहा है? इस लेंथ को कवर कर ले रहा है, ठीक है, इस लेंथ को पार कर रहा है कम टाइम पे। तो ये तो एक नया प्रॉपर्टी हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पीड। अब देखो यहाँ पे स्पीड को क्या है? यहाँ पे स्पीड को हम लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पीड इज व्हाट? दैट लेंथ कवर in per unit time, that is the speed. So this quantity, this physical quantity can be expressed in term of many fundamental quantities या many other quantities. So this can be driven from another quantity. और लेंथ क्या है? नहीं, हम दूसरे क्या करेंगे? लेंथ को हम मास के टर्म में नहीं लिख सकते। मास को टाइम के साथ हम कंपेयर, या सॉरी, मास को हम टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। सो दैट हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एंड दिस फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं? 7 टाइप के हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कितने टाइप के हो गए? ये हमारे 7 टाइप का हो गया। फर्स्ट इज आवर लेंथ, देन मास, देन टाइम, then electric current, then temperature, then the amount of substance, then luminosity or luminous intensity, luminous intensity city. So फंडामेंटल वैसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे जो दूसरे क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, उस पर डिपेंड करता ही ना हो, उनसे क्या है कोई मतलब ही नहीं है। या फिर उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में उसको एक्सप्रेस ना कर सके हम। और अब हम क्या बोलेंगे? हमारा नेक्स्ट है डिराइव क्वांटिटी। हम इसको इस तरह का क्वांटिटी बोलेंगे विच डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी। For example, speed depend upon length and time, and length is a fundamental quantity and time is a fundamental quantity. So the derived quantity depend upon fundamental quantity, means it can derived or expressed in term of
fundamental quantities, and that is derived quantity. There are many derived quantity in this nature of physical world. For example, speed, then mm, force. Force is what? Force is just mass into distance upon time square. Time square. How? So force is mass into acceleration. Acceleration is what? Velocity upon time, and this is what? Mass into velocity is what? Velocity is displacement upon time, so this will give you displacement upon time square. So force is what? Force is mass distance, mass into distance upon time square. So the force is a derived quantity, and it can express in the term of fundamental quantity. For this case, the fundamental quantities of force is mass, mass, distance, and time. Okay, the force depend upon mass, that is a fundamental quantity, distance, that is a fundamental quantity, and time. So these are the derived quantity. In next video we will study about units and measurement. So this is for today. Thank you for watching my video.